इतना ही पता है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ये चीज़ हमारे वालिदैन को भी तो नहीं पता। जो आज के दौर में अर्निंग चेंज हो रही है, नई दुनिया बन रही है, दुनिया सैटेलाइट दुनिया चल रही है, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, तो हमारे बड़े, जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपने बड़ों से सुनते रहते हैं ना बातें, तो हमारे जहन में वो छप जाती हैं। तो ये वाली चीज़ तो एकदम नहीं है ना। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मोजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। इलेक्शन में खड़ा हो गया हूँ दोस्तों। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, हैदराबाद सिटी से रिलेटेड। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज मॉडर्न सिटी, हैदराबाद सिटी, high-tech city. So start. Behind me is the Cyber Towers building, the very first building built in high-tech city here in Hyderabad. Hello. Hello. This is one of the fastest growing IT hubs in the entire world. Let's go explore. Cyber Towers was built in 1997 when this whole development and idea was just getting started. Today, there are many companies within here, Microsoft being one of them. IBM, Facebook, and that one company that starts with the letter G. There are a bunch of businesses here in High Tech City. And later in this video, I'm going to take you on a driving tour to show you them. High Tech City stands for Hyderabad Information Technology Engineering Consultancy City. Can we say that 5 times fast? Behind me is the Trident. I think it's a hotel. It's like there's like a park here with the gate open, so we're going inside. Make sure there's no policemen. All right, we can film here. High Tech City spreads out over 200 acres and makes up a number of different suburbs here in Hyderabad. So this would be an IT. We're driving through High Tech City now, looking at all the beautiful buildings. Around us are all the buildings that house IT companies here in Hyderabad. For instance, ahead of us we have Deloitte. I've seen JP Morgan. I've seen... It's also called Cyberabad, which is kind of a cool name. It's got a nice ring to it. Behind us is a 7-star hotel shaped like the Titanic ship. It has a radius of over 30 miles, so it's pretty big. You can't just walk around it. Like, I can't just go show you all of it in one short little walk here. If you're driving out here, it's very close to Jubilee Hills, which is like the nice neighborhood here. It's like the Hollywood of Hyderabad. The actors live there, nice hills overlooking the city, beautiful apartments and houses. Some of the people in High Tech City stay in buildings just like this, nice big skyscrapers. They're gonna cost you like $750,000, $800,000 to stay there. The first IKEA in India. If you're liking this video, please click the like button, help the video go out to more people. There's a lot of security guards in this area, and you can just see them looking at me like, oh, I hope this guy with the camera comes here. Can't wait to get some action. Speaking of security, since you're watching this online, it's something you need as well, and why I'm thankful that Surfshark VPN is sponsoring this video and offering you a deal below. You can use Surfshark VPN on your laptop or your phone. With all the scammers out there, anyone who uses the internet needs extra protection. Surfshark VPN encrypts your data, making it useless for someone trying to hack into your account. I always use a VPN when I'm online, especially if I'm using public Wi-Fi at hotels, Airbnbs, and restaurants. As a traveler, you can also use a VPN to get lower prices on plane tickets and hotels. Because prices vary based on your location, so if you're trying to book a hotel, just connect to one of Surfshark's servers in 95 countries and check for the lowest price.
I use Surfshark VPN to not get locked out of my US bank accounts while I'm overseas too. To access my US bank accounts, I'll connect to US servers and I can avoid bank account freezes and still access my money. Or maybe you just want to watch the USA's Netflix in India. You can just connect to the USA server and then could watch the latest episodes of US shows like The Walking Dead. You also get a 30-day money-back guarantee so you can test it out without any risk. And if you use the link in the description, you'll not only be supporting this channel, but you can also get a big discount and 3 months free. We've got some little snack shops for the tech. Let's see what kind of coffee these high-tech workers get to have. Special filter coffee. Plenty of bubbles, great flavor, I like it, it's good. Behind me is Mindspace, one of the biggest parks in the city. Let's check out the area. This is Bank of America. Yes. It's a shared space though, but you also have Bank of America. It stretched the entire mind space. Another Bank of America, Accenture. Okay. There's IBM. Say hi. So I'm down here on a corner underneath some of these large IT buildings. There's a number of different small eateries serving snacks, drinks. The people, the workers will come down, get themselves a chai, get themselves a Maggi noodle, and then head back up and get back to work. I'm here with my friend KC from Food Monks. He also has a channel about food here in Hyderabad and across India. We're gonna grab some lemon tea. We also made a couple other videos which you can check out here. Some lemon tea here down on the street in the IT park. Good smell. Refreshing. OpenTech, this is Facebook right here. So it's a bit like Google renting like RMZ building. Correct. So Yeah. Google has its own center and Yeah. Google has its own buildings in the shared space. This building right over here is the Google campus. There's another Google campus right here. We got Deloitte behind it. Restaurants down on the bottom. So all the maps, all the locations will be done from here. Behind us is Google's headquarters. 2 buildings actually. One here where they do the maps. We got another one here named Western Pearl. Cool outer portion of it. For me, it's impressive to think about how someone got this started 20 years ago, because this was way back when I was just like 18 years old. So this was the beginning of the internet. The minister here got funding to get this project started, and you look 22 years down the road, or maybe 24 years down the road, it's such a unique place here in India. Now there are other IT parks. Bangalore has them, Chennai has them, other big cities have them, but this is one of the most unique that I've seen. The MySpace Junction area and heading to the other side of the IT parks. Casey is telling me that each of these campuses we're going to see, like Microsoft campus, they have their own basketball courts and they have their own gym.
and recreation. So they're really kind of like a little city onto themselves, it sounds like. To the left, it's Dell AIM, right here. and to the left you have HCL, Oracle, Amazon. It's a shared space like Mindspace buildings. Okay. And Dell campus. Behind me is Dell, and it's also another campus. We got Amazon, we got other large This is companies to the right here. It's a Oracle. Tech Mahindra right here. Behind us is another IT park. We got Tech Mahindra. Some more eateries. Yeah. Get your lemon tea, samosa. Pani puri, juices, dosa, idli, you name it, you will get it. Okay. I know a lot of the office workers worked from home during the pandemic, but now they're working about 3 days a week. Across this part, there are a number of different parks where these major companies rent buildings or they have their own campuses. It does depend. They have a ton of buildings. Microsoft or Amazon might have 3, 4, 5, 6, even more buildings. And I'm happy to see that there's so many workers, people with some great jobs, down having a chai underneath these big buildings. Seeing the office workers, it is a little hard for me to relate because I've never worked in an office in my entire life. Out of college, I worked at an outdoor school for kids. Then I did some travels. Then I started working online. On this side, we have the Indian School of Business. It's like the Stanford of India, the business Stanford of India? school. Correct. Oh, okay. Yeah. Highly regarded school. Entrepreneur. We have Microsoft's campus over here, which is their development center for Asia, all of Asia. Very cool. So this is where you work? Yes. Okay, Casey works here. This is where the money is made. Okay, the campus for Microsoft goes for almost a kilometer. And then on the other side, there's another company called Wipro. I know some people really like the office culture. You got your friends there, you have coworkers. There's like a mutual synergy that happens when you're all working on one thing in the same building. I know some of these teams work really, really hard too. So they have these great IT parks, they got basketball courts, they got recreation, but there's also like, you gotta get the job done, and it makes sense. Another highly respected IT school here in Hyderabad. My friend was very happy with his position at Microsoft. He would come visit Redmond in Washington, where Microsoft is based in the USA. The security guard's kicking me out. Well, at least he didn't make me delete my tape, which sometimes they ask, but I never do because I talk my way out of it somehow. Check out this building, that's nice. I could work there. I'm happy something like this exists too because it's like, you know, people are making some money. They got some great jobs out here for these large multinational companies, putting their developer skills to work, their coding skills, their project management skills. And tune in next week for another video about beautiful India. जी जनाब, अच्छा इनका पहला व्लॉग हमने देखा था तो इन्होंने हैदराबाद का एक अलग एरिया दिखाया था जिसमें मतलब एक उसको ये कह सकते हैं घूमने फिरने का पिकनिक पॉइंट ज़्यादा कवर किए थे। और इस बार मुझे ऐसा लगा कि इन्होंने जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे काम वाले जो एरियाज़ होते हैं और बिल्डिंग्स हैं जो बहुत बाहर की, यानी कि अमेरिकन बेस्ड कंपनीज़ हैं या बाहर की जो कंपनीज़ हैं जिनके यहाँ पे कैंपस बने हुए हैं, जो यहाँ पे हैं, जैसे गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, विप्रो था और भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, डेल था, तो इन सबको इन्होंने कवर किया। यानी कि समझो ये कह सकते हैं ऑफिशियल कंपनीज जो हैं वो उनको दिखाया। आईटी से रिलेटेड और सारी चीज़ें जो थी, मतलब एक पूरा आईटी पार्क बता रहे थे। यहाँ पर इस पूरे एरिया में ये सारी बड़ी बड़ी, इसको कह रहे हैं हैदराबाद नहीं, साइबराबाद कहना चाहिए, साइबराबाद। और साइबराबाद दूसरी चीज़ है, मैं तो ये कहूँगा कि इन फ्यूचर सिलिकॉन वैली अमेरिका में एक ऐसी जगह जहाँ पर मतलब है कि यही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है। सिलिकॉन वैली हमने इंडिया में बेंगलोर में, हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई शहर सिलिकॉन वैली बन जाएंगे ऐसा लग रहा है। अच्छा एक चीज़ समझ में नहीं आई कि गूगल की एक बिल्डिंग है, गूगल का एक ऑफिस है, तो दूसरा भी है, मतलब गूगल का एक डिपार्ट होगा तो उससे रिलेटेड वहाँ काम होता होगा, तो गूगल के ही रिलेटेड कोई और डिपार्ट होगा तो वहाँ कुछ ही और तरह का काम हो रहा होगा। यानी कि अगर एक ऑफिस है गूगल का तो मैं ये समझूंगा शायद बहुत है, कोई भी रिलेटेड गूगल से हमारा रिलेटेड काम हो रहा होगा, वहाँ पे गूगल का अपना एक ऑफिस होगा तो काफ़ी होगा।
लेकिन ऐसा भी नहीं है, इतना इंडिया वाले काम कर रहे हैं इंटरनेट से रिलेटेड, ऑनलाइन से रिलेटेड, हर चीज़। पता है एक शख्स की मैंने वीडियो देखी, वो शख्स इतना गुस्से में कि अगर आप फाइवर उठा के देख लें, आप अमेज़न उठा के देख लें, आप किसी भी किस्म का प्लेटफॉर्म उठा के देख लें, इंटरनेट से, ऑनलाइन से, किसी भी तरह से अर्निंग के हवाले से हर जगह इंडियंस, हर प्लेटफॉर्म में इंडियंस। वो पाकिस्तान में बंदा वीडियो बना रहा था, लोगों से गपशप कर रहा था। अच्छा, मतलब ऐसा लगता है कि पाकिस्तानियों को वो कह रहे हैं पता ही नहीं है कि ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है और इस तरह से क्या काम हो सकता है। वो कह रहा है अगर पाकिस्तानी आपको मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, क्या कर रहा है वो। दुनिया का सबसे आसान काम जो 12 साल का 10 साल का बच्चा भी कर ले, कैनवा। यानी कि अगर पाकिस्तानी आपको दिख रहा है तो वो कैनवा पे आपको सर्विस दे रहा है, यानी कि आपके अंदर स्किल ही नहीं है। आप बिल्कुल वो काम पे पाकिस्तानी दिख रहा है कि जो काम बिल्कुल ही बच्चों का है। तो कह रहे हैं कि उनके अंदर सलाहियत नहीं है क्या? यानी कि आप बड़ी सर्विस दे रहे हैं, इंडिया वाले हर किस्म की सर्विस इंडिया वाला दे रहा है। इंडिया के लड़के बैठे हुए हैं, इंडिया की आपको पता है अच्छी, हमने एक वीडियो देखी थी कि 100 बिलियन की मतलब है कि एक्सपोर्ट इंडिया कर रहा है आईटी से रिलेटेड, और पाकिस्तान में 2 से 4 मेरे ख्याल में बता रहे थे कि 2 या 4 बिलियन, 100 बिलियन इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट हमने देखा था। हाँ। नहीं 300 समथिंग था यार, नहीं 100 से ज़्यादा था, 100 से ज़्यादा था। जबकि वो बता रहा था, मुझे इसलिए भी याद हो गया कि उसने कहा है कि लोग कहते हैं इंडिया की आबादी ज़्यादा है तो वो 100 बिलियन दे रहा होगा आईटी एक्सपोर्ट, तो मुझे इस वजह से वीडियो याद रह गई। तो वो कह रहा है कि इंडिया की आबादी ठीक है ज़्यादा है, सही, हमारा 1 या 2 है। हाँ, तो वो कह रहे हैं ठीक है इंडिया की आबादी ज़्यादा है और वहाँ 100 बिलियन एक्सपोर्ट है। अच्छा अब तो बढ़ गई है, अब तो 2। तो वो कह रहा था कि क्या इंडिया की आबादी हमसे 100 गुना ज़्यादा है। उसके बदले में ये जवाब दे रहा था कि जिन लोगों को ये एतराज़ है कि इंडिया की आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो हर चीज़ में उनकी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। हमारी 2 से 3 बिलियन है, इंडिया की 100 बिलियन होगा। तो वो कह रहा था कि इंडिया की आबादी हमसे 100 गुना ज़्यादा नहीं है, वो वैसे हमसे बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत आगे। उन्होंने वो चीज़ों को बहुत पहले अपना लिया था जिन्हें हमने अब तक नहीं अपनाया है। ऐसा ही तकरीबन 20-20, 25-25 साल पहले वो उन राहों पे निकल गए थे, वहाँ स्ट्रगलिंग शुरू कर दी थी उन्होंने, उस फील्ड में काम करना शुरू कर दिया था जिसकी खबर हमें अब तक नहीं पड़ी है, जिसके बारे में हमें अब तक नॉलेज नहीं है। आपको एक और बात बताऊँ, कराची के हवाले से बात कर लेते हैं, सिर्फ एक सिटी की बात करते हैं, हम पूरे पाकिस्तान को नहीं कवर करते। हम जहाँ रहते हैं हम उसके बारे में ज़्यादा अच्छे से बात कर सकते हैं। कराची की टोटल पॉपुलेशन है अराउंड 3 करोड़, ठीक है तकरीबन। उसमें से 2 करोड़ के बारे में मैंने सुना कि यंगर है, यानी कि ज़्यादातर लोग जवान हैं कराची की पॉपुलेशन में। 1 करोड़ जो हैं वो बिल्कुल बुढ़े नहीं हैं, उनमें भी शरह है 30 से 35 तक के, यानी कि 30 से लेकर 35 तक के लोग हैं, 32 तक के लोग हैं, 33 तक, ज़्यादातर लोग। 1 करोड़ की बात करूँ, बाकी 2 करोड़ तो बिल्कुल यंग है, 18, 19, 20 ऐसे वाले। आपको पता है क्या कर रहे हैं? डिलीवरी बॉय बने हुए, ऑफिस वर्किंग कर रहे हैं, ऑफिस वर्किंग में वही 9 to 5 वाली। इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा बाइकिया में काम कर रहे हैं ज़्यादातर, यानी कि ज़्यादातर महाजिर हैं, और ये महाजिर ये काम कर रहे हैं। सही कह रही तो किसी को भी खबर नहीं है कि ऑनलाइन में करना है, किसी को भी खबर नहीं है स्टार्टअप करना है, किसी को भी खबर नहीं है अपना कुछ करना है, अपना कुछ बनाना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, एक शख्स का मैंने पहले भी जिक्र किया था, तो वो शख्स अक्सर जिक्र करता रहता है, लोगों को बताता रहता है ऑनलाइन अर्निंग करें, इंटरनेट से अर्निंग करें, लैपटॉप आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, ये बदल सकता है। तो वो कहता है कि लोग मानते नहीं हैं, लोगों को यकीन। अच्छा, लोगों को कहा जाए कि दूध काम करें, लोगों को कहा जाता है ना दूध की दुकान है, वो दूध की दुकान खोलने से पैसा आएगा तो वो मानते हैं, वो फौरन खोल लेंगे। ठीक है, मतलब एक रिक्शा चलाने से, चिंची चलाने से पैसा आएगा तो चिंची चला लेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो ये बताता है कि जब तक आपके आसपास जो लोग हैं, जब तक वो कमाने नहीं लगेंगे, बोला ये चीज़ आस्ते आस्ते जहनों में लोगों के आएगी, जब तक आपके आसपास लोग एक काम करके कमाएंगे ना, तो आपको यकीन आएगा, क्योंकि आप अपनी आंखों से देखोगे। अब एक चीज़ इंसान ने आंखों से देखी नहीं है, कभी सुनी नहीं है, तो लोग इसको पता क्या समझ रहे हैं? अगर कोई शख्स कह रहा है ये करो वो करो, वो समझ रहे हैं स्कैम है, वो समझ रहे हैं इसका क्या फ़ायदा, इसको कोई फ़ायदा होगा, इसका कोई बेनिफिट होगा, ये हमें क्यों अच्छा नहीं कर सकते, इसमें स्कैम। अच्छा, हमारे यहाँ पे बेईमानी इतनी आम हो चुकी है कि अगर आप किसी को सही बात बता भी रहे हो तो अगला बंदा उसको गलत मायनों में ले रहा है। 1 रुपये का भरोसा नहीं किसी का। एक ये चीज़ है। बात मैं आपको एक और बात बताऊँ कि मैं इतनी हैरान हो गई। एक दफ़ा मेरा इत्तेफाक हुआ, हैंडबैग्स लेने गई मैं, तो वहाँ पे लड़का था, वो बहुत अच्छे से डील कर रहा, बहुत इंग्लिश में बात कर रहा, तो मुझे हैरानगी हो गई। जबकि उसने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ था, स्टॉल में पूरी शॉप ही नहीं थी उसकी, सही कॉर्नर था, कॉर्नर पे बस उसने बैग्स टांगे हुए।
तो मुझे हैरत हुई, काफ़ी इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ कर रहा, इंफीरियर ये वो। तो उसके बाद ना मेरी मदर ने उनसे पूछ लिया, मदर ने कहा काफ़ी क्वालिफाइड लगते हो बेटा आप। तो कहने लगा जी मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है। तो हमने कहा, मैंने फिर डायरेक्टली उससे बोला, मैंने कहा ग्रेजुएट करके आप इतना छोटा सा स्टॉल लगा के हो, तो मतलब आप कुछ अच्छा भी कर सकते थे, कुछ बड़ा भी कर सकते थे। कहने लगे कि मैं किसी की जॉब करता और उससे मैं कमाता, तो इससे बेहतर है मैं स्टॉल से बहुत कमा लेता हूँ, सही, मुझे ज़रूरत नहीं है कहीं ऑनलाइन करने की या कुछ करने की। मैं चुप हो गई। फिर थोड़े दिनों पहले एक मेकअप की शॉप पे जाना हुआ मेरा, वहाँ पे एक लड़का मास्टर्स किया हुआ है उसने, सही, और वो मेकअप बेच रहा है। तो मैंने कहा यार, क्योंकि हम वीडियो देखते हैं तो हमारा दिमाग थोड़ा खुल चुका है, तो मैं सोचती हूँ यार इन लोगों को देखो, ये लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहाँ नहीं झंडे गाड़ रहे हैं अपने नाम के, और हमारे वाले मेकअप राइडर चिंची चलाने वाले ग्रेजुएट हैं, मास्टर्स हैं। असल में जब तक आपके आसपास वाले लोग ऑनलाइन अर्निंग वाले नहीं निकलेंगे, सॉफ्टवेयर वाले नहीं निकलेंगे, आईटी से रिलेटेड लोग नहीं निकलेंगे, तब तक आपको यकीन नहीं आएगा। हमारे यहाँ पे डॉक्टर वही बनता है जिसके आसपास ख़ानदान में सब डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर वही बनता है जिसके आसपास कोई ना कोई इंजीनियरिंग वाले लोग मिलते हैं उसे। तो माहौल आपके आसपास, यही हमारा ज़िंदगी है, यही हमारा यकीन है। एक शख्स एक गांव में रहता है, उसने कभी ज़िंदगी में शहर गया ही नहीं है, तो वो उस गांव को ही सब कुछ समझता है। वो समझता है कि यही ज़िंदगी है, यहीं से फसल उगती है, यहीं से खाया जाता है, यहीं शाम में दोस्तों के साथ बैठ के रात हो जाती है, फिर सुबह हो जाती है, फिर रात हो जाती है। जिसने जितना देखा है, जितना सुना है, जितना उसने समझा है, जितना उसको बताया गया, उसे उतना ही पता है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये चीज़ हमारे वालिदैन को भी तो नहीं पता। जो आज के दौर में अर्निंग चेंज हो रही है, नई दुनिया बन रही है, दुनिया सेटेलाइट दुनिया चल रही है, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, तो हमारे बड़े, जैसे हम जब बच्चे होते हैं तो हम अपने बड़ों से सुनते रहते हैं ना बातें, तो हमारे जहन में वो छप जाती हैं। तो ये वाली चीज़ तो एकदम नहीं है ना। अच्छा, एजुकेशन से तो बोलते हैं कि अकल आती है, समझ आती है, आपको शऊर आता है, आपको पता चलता है, आपका दिमाग खुलता है। तो एजुकेशन में भी कौन लोग हैं मतलब जो ग्रेजुएट करके भी चिंची चला रहे हैं। अच्छा, वो मज़े की बात आपको और बताऊं, वो आगे भी पढ़ ही रहे हैं, और लेकिन उनका विजन यही है कि मुझे चिंची ही चलाना है, क्योंकि मुझे पूरे दिन में 1000 रुपये में कमा लूँगा चिंची से। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जब देखो पढ़ाई तो उतनी है जो है, पढ़ाई में हमारे यहाँ कहाँ पे आईटी से रिलेटेड पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाई हमारे यहाँ वो है जो 10 साल 20 साल पहले थी, जितना उनके वालिदैन ने पढ़ा उसी तरह वो पढ़ रहे हैं। आज की जो जदीद टेक्नोलॉजी है ये एक अलग चीज़ है। आपको पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है हमारे यहाँ काउंसलिंग की कमी है। बिल्कुल आपने सही, इन शॉर्ट आपने बिल्कुल फाइनल सही बता। यूथ को बिठा के हमें समझाना पड़ेगा, बिल्कुल। नहीं तो आप यकीन करें ये 2 करोड़ कम होते हैं। ये हम कहाँ हैं? कराची के हालात देखिए। यही तो मैं कहता हूँ कि जिस तरह आपने काउंसलिंग का लफ्ज़ यूज़ किया, यही चीज़ रेहान अल्लाह वाला कर रहा है, यही चीज़ बाकायदा लोगों को समझा रहा है, बता रहा है। लेकिन हर शख्स को अपने आप यही चीज़ जो है, मैं कहता हूँ लोग, बहुत सारे लोग कर रहे हैं अपने आप में, जितना हो सकता है यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं, अपलोड करते हैं, और कई लोग तो जेब से पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बाकायदा लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी, और ये अवेयरनेस इस तरह के आईटी सिटी यहाँ लोगों को दिखाया जाए तो लोगों को बिल्कुल मुझे याद रहेगा हमेशा, लियारियाबाद। तो दोस्तों एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।